Hello, good morning student. Welcome you Botany Center. I am Vikas Kumar. Today discussing chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. What is the meaning of sexual reproduction? You know, sexual reproduction, the male and female gamete, the fusion of male and female gamete and form zygote is called sexual reproduction. What is the meaning of flowering plant? Flowering plant, which type of plant produce flower is called flowering plant. Only angiosperm plant flower produce. So angiosperm plant is called flowering plant. Today discuss in this chapter angiosperm plant. First, starting discuss in flower. What is the flower? What flower type of flower? Roll of flower, ring of flower. Discuss first question. Smallest flower. इस वर्ल्ड में सबसे छोटी जो फ्लावर है उनको कहते हैं वॉल्फिया. स्मॉलेस्ट फ्लावर इज कॉल्ड वॉल्फिया. लार्जेस्ट फ्लावर Rafflesia ordinarily. Rafflesia ordinarily, which diameter is 9 centimeter approx. Rafflesia ordinarily. National flower. Our national flower, Nilambo nakifera. This is scientific name. Common name, lotus. Anthology, study of flower. We call study of flower anthology. Flower is highly condensed and modified shoot system having nodes and internode. Flower modify shoot system. We know plant have two system, root system and shoot system. Root system and shoot system. This is a plant. This is a plant. Under the soil, a part of the soil is called root system. Root system. And part of upper the soil is called shoot system. Shoot system. We know flower modify in shoot system. फ्लावर जो मॉडिफाई करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? ये अपर सॉइल, ग्राउंड के अपर वाले हिस्से में फ्लावर जो है मॉडिफाई करते हैं. तो क्या कह सकते हैं? फ्लावर मॉडिफाई इन शूट सिस्टम. हैविंग नोड एंड इंटरनोड. वी नो नोड एंड इंटरनोड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाम्बू. Bamboo you see just like structure. This is called node. Between distance two nodes called internode. This is called node. Distance between two nodes is called internode. A typical flower has 4 roll. A typical flower has 4 roll or ring. Ring means कह सकते हैं कि फ्लावर जो है 4 रिंग से सराउंडेड रहते हैं. Arranged successively, which are arranged continuous, one just other one, फिर on the swollen end. Swollen end फ्लावर का जो फूला हुआ भाग होते हैं वहां से ये चारों रिंग जो है अरेंज होते हैं और वो लगातार अरेंज होते हैं. On the stalk, फूला हुआ भाग को हम लोग कहते हैं स्टॉक या फिर पेडिसिल. कॉल्ड थैलेमस. ये जो थैलेमस फूला हुआ भाग को हम लोग थैलेमस करते हैं और फूला हुआ भाग का जो नीचे डंठल जस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग फ्लावर में जिस हिस्से को पकड़ते हैं उसको हम लोग पेडिसिल बोलते हैं. फ्लावर के जो 4 रोल है, ये रिंग है, उनका नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. हम लोग देखते हैं कि पहले फ्लावर के ये 4 रिंग कैसे कैसे कहां पर अरेंज होते हैं. ये पेडिसिल है. पेडिसिल के ऊपर फूला हुआ भाग है जिनको हम लोग थैलेमस बोलते हैं और थैलेमस पर ये ऐसे एंड्रोसियम अरेंज होते हैं और एंड्रोसियम की जस्ट बगल में गाइनोसियम, एंड्रोसियम ये है, ये गाइनोसियम है. और जो फ्लावर में कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कोरोला.
और जो ग्रीन कलर के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, दिस इज कॉल्ड कॉरोला, दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम, and last this is called gynoecium. We see in this four ring of flower: calyx, corolla, endoecium, gynoecium. Soilen part is called thalamus. This is called pedicel or stalk. Thalamus and pedicel are not part of flower. Flower, how many part of flower? 4 part of flower: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. This is structure: calyx, green-like structure; corolla, colorful, different color and different flower; endoecium, male organ of flower; gynoecium, female organ of flower. Note this topic, this point, and discuss next what is the meaning of calyx, corolla, endoecium and gynoecium. हम लोगों ने अब तक देखे कि फ्लावर का 4 रिंग या 4 रॉल कौन कौन से होते हैं: कैलिक्स, कॉरोला, एंडोसियम, गायनेसियम, और कैसे अरेंज होते हैं फ्लावर में। अब कैलिक्स एंड कॉरोला आर एसेसरी ऑर्गन, व्हाइल एंडोसियम एंड गायनेसियम आर सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जो 4 रॉल हैं, ये 4 रिंग हैं, ये चारों रिंग में जो दो हैं, दो सहायक है, हेल्पिंग करते हैं। हेल्प कौन कौन करते हैं? कैलिक्स एंड कॉरोला। और सेक्स ऑर्गन के रूप में कौन कौन से हैं? एंडोसियम एंड गायनेसियम, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ऑल फ्लावर हैव कैलिक्स एंड कॉरोला। जितने भी फ्लावर है सब फ्लावर में कैलिक्स और कॉरोला प्रेजेंट होते हैं। बट विच फ्लावर हैव बोथ एंडोसियम एंड गायनेसियम इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। सॉरी, यहाँ पे वाई लॉन्ग, ठीक है, बाइसेक्सुअल। विच हैव while have only one एंडोसियम और गायनेसियम इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो फ्लावर एंडोसियम और गायनेसियम दोनों उनके इसी फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, और जिस फ्लावर में या तो एंडोसियम होंगे या तो गायनेसियम होंगे तो ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो आप लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को पहले भी चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे, समझे हुए थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किनको बोलेंगे। अब जो फ्लावर का पहला रिंग है जिसका नाम है कैलिक्स, कैलिक्स पर डिस्कस करते हैं। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का सबसे बाहरी रिंग है, ये सबसे बाहरी भाग है। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। कैलिक्स का जो यूनिट होते हैं, आप लोग समझते हैं यूनिट, और यूनिट किसको बोलेंगे? यूनिट जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बंच में है, गुच्छे में है, जस्ट लाइक 5 फिंगर इज कॉल्ड पंजा, 1 फिंगर इज कॉल्ड 1 फिंगर। तो ये सब 5 उंगली मिलकर इसको पंजा बनाते हैं और 1 उंगली मिलकर सिर्फ उंगली बनाते हैं। तो वैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे सेपल मिलकर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। जनरली सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जो कैलिक्स होते हैं वो फ्लावर में कैसे होते हैं? वो ग्रीन कलर का जीर्ण सामान्यता होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। कब? बड कंडीशन में। जब आप फ्लावर को छोटे कंडीशन में देखते हैं तो वो एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से पूरी तरह से सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वो होते हैं कैलिक्स। द कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब होते हैं कि सारे जितने भी ये सेपल होंगे तो वो सेपल क्या होंगे? आपस में सब जुड़े होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैमोसेप्लस। और सारे सेपल आपस में अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेपल। फिर कह सकते हैं सेपल फ्री। यहाँ पे हम लोग कैलिक्स के बारे में समझ पाए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉरोला पर, एंडोसियम पे। एंडोसियम तक की बात करेंगे तो समझिए कैलिक्स क्या है। कैलिक्स फ्लावर का आउटर मोस्ट रिंग है। ये जो है इसका यूनिट को सेपल कहते हैं। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बड स्टेज में। और ये में भी गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब जितने भी कॉरोला ये कैलिक्स होंगे या फिर सेपल होंगे, वो सेपल सब आपस में एक साथ जुड़े होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे गैमोसेप्लस। और जो अलग अलग होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेप्लस। नोट डाउन।
कैलिक्स के बारे में हम लोग समझ पाए, कैलिक्स जो है फ्लावर का मोस्ट आउटर रिंग है। तो अब हम लोग कोरोला की बात करेंगे। कोरोला क्या है? कोरोला इट इज सेकंड आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का दूसरी सबसे बाहरी चक्र है। द यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। पेटल, ये कोरोला की यूनिट को हम लोग पेटल बोलते हैं। यूनिट आप लोग समझ पाए। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये जो कोरोला होते हैं ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर होते हैं। ये कलर इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन के लिए मोटिवेट करे। ऐसे नहीं कि फ्लावर कलरफुल ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सुंदर दिखते हैं। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। अलग अलग प्लांट में ये इसका कलर अलग अलग होता है। किनका? कोरोला का। और इनका शेप भी अलग अलग होते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनेल शेप्ड। कोरोला के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फनेल शेप होते हैं या फिर ट्यूबुलर शेप के होते हैं या फिर बेल शेप होते हैं। आप लोग लगभग ऐसा समझ रहे हैं कि फनेल शेप कैसे होते हैं। फनेल शेप हम लोग ऐसे शेप को बोलेंगे। ये होगा फनेल शेप। ट्यूबुलर शेप, ट्यूब के समान ऐसे हो गए ट्यूबुलर शेप। बेल शेप आप लोग समझ रहे हैं, बेल ऐसे, ये हो गए बेल शेप। या फिर इसको हम लोग सर्कुलर भी कह सकते हैं, सर्कुलर। कोरोला में भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब कोरोला का जो पेटल है वो आपस में सारे जुड़े भी होंगे या फिर दोनों आपस में अलग भी होंगे। अगर आपस में सब पेटल जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे गैमोपेटलस, और सारे पेटलस आपस में फ्रीडम होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेटलस। चलिए अब हम लोग एंडोसियम की बात करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो एंडोसियम इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द यूनिट ऑफ एंडोसियम इज स्टेमेन। एंडोसियम की जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। बहुत सारे स्टेमेन मिलकर क्या बनाते हैं? एंडोसियम। टिपिकल स्टेमेन हैज 3 पार्ट। एक टिपिकल स्टेमेन को जब देखते हैं, मैच्योर स्टेमेन को देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। ये एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट कैसे होते दिखाते हैं। ये एक स्टेमेन, टिपिकल स्टेमेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक टिपिकल स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। ये एंथर जो होते हैं ये बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं। एंथर जो होते हैं वो बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथर। और ये जो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर आपस में जो जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फिलामेंट, सॉरी कनेक्टिव। तो समझ पाए ये एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट कैसे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। एंथर जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर सामान्यतः कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं? बाइलोब है, वन लोब, टू लोब। फिलामेंट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट जो है ये लंबा है और सिलेंडर के जैसे स्ट्रक्चर है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट का जो दूरस्थ वाले हिस्से, दूरस्थ वाले हिस्से कौन है? ये वाला जो पोर्शन है अटैच विद थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पेटल से या फिर थैलेमस से अटैच रहते हैं ये वाला हिस्सा। कौन? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। तो यहाँ पर हम लोग एंडोसियम के बारे में थोड़ा बहुत जाने, कैलिक्स, कोरोला समझ पाए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, क्योंकि एंथर ही जो वो पार्ट है जहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंथर को पूरा समझ पाएंगे, मेल गैमेट को पहले समझेंगे कि मेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फिर फीमेल गैमेट की बात करेंगे, गायनेसियम पर बात करेंगे। गायनेसियम जब पूरी तरह से समझ जाएंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, तो फिर हम लोग पॉलिनेशन की बात करेंगे। आप लोग को पता ही है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होते हैं गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो अभी हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होंगे। तो एंथर के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं मेल गैमेट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंथर में कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन प्लांट का मेल गैमेट का नाम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंथर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। नोट डाउन।